Namaskar, I'm Ashok Vyas, and today's show we are working towards increasing our understanding about the world that we are collectively creating for ourselves. When I say we, I consider whether we are active or inactive, whether we are participating or not participating, but somewhere, even by being silent, spectator, or even by not being proactive, we have participated through our absence also, as they say, absent voters. But what voters decide, whether it reflects in making sure that what they desire is the way government functions, we'll have a look on that from Indian perspective as well as on the global scene. And let me take this opportunity of welcoming my panelists today. Hari Bhattji joins us from New Jersey, and Dr. Dheeraj Kaul is right here in um, our backyard, I would say, as far as Long Island is concerned. So, while we are talking about new world, let me open the forum by requesting Dr. Dheeraj to weigh in on the global scene at the moment, where we all are concerned about what is happening in Ukraine. And then we go to India and we talk about the election results. Dheeraj ji. Namaskar, Vyashji and Hariji. Namaskar. Thank you so much for having me on the show and giving me this opportunity to share some information. मैं हिंदी में actually maybe I'll speak in Hindi. आप हम दोनों भाषाओं को सम्मान देते हैं जी. हाँ, तो जैसा कि हम देख रहे हैं वर्ल्ड इज वेरी वेरी कनेक्टेड इकोनॉमिकली जियोपॉलिटिकली इमोशनली कल्चरली इट्स वेरी कनेक्टेड दीज आर नॉट द टाइम्स ऑफ 1930s 1940s of World War One, World War Two, or 1980s of World War One. You have seen even the virus which travels such at lightning speed, and it started in Wuhan and within days it was all over the world. Same thing, this war will touch each and every person. I've been on national media speaking about it before the war even started from 20th, and it's one of the biggest catastrophe of our living times after COVID. And what is the worst time to have a war? When the economy is recovering from COVID, millions and millions of people have died, there is so much mortality. US is about to touch the psychological number of 1 million deaths very very soon. So this is what we are dealing with now. I'll just start with straight. Currently, what we are anticipating is the largest refugee crisis after World War II. 2.5 million people have left Ukraine. And not to talk about a population of 44 million, which is in Ukraine and have lived there for some time, traveled all the country, and in Moscow, the eastern part of Ukraine, around 5 to 10 million people, depending on which sources you look, have already migrated towards the west of Ukraine. So if we consider them as refugees in the same country, it won't be wrong to say they have taken away everything they can in their hands and moved. On top of that, in the West Ukraine and around the Kiev area, which was fully loaded, now they have a very big issue going on. And in Poland, 1.6 million people have actually moved to Poland as of yesterday. 245,000 people are moved to Hungary, 195,000 to Slovakia. Moldova, a country with a crippling economy, has a burden of 278,000 people. Romania, 173. Yesterday, UK approved a new scheme in which they will reimburse £395 for every single Ukrainian which will be accepted in the United Kingdom's family. They have started a special visa program, and a lot of European countries are planning to do that. When we talk about death and devastation, it all depends, because there is a lot of media propaganda going on. So the numbers are very, very up and down. But if you look at the numbers, depending on which source you see, you can go up to say approximately they are saying that as of so okay, 12,000 Russian soldiers have been killed. Why is it important? Because what brought down the mighty USSR, one was the financial crisis, the other was the outright of young mothers, wives and sisters against a war which was led in Afghanistan. The number of people who died in Afghanistan war, which lasted for years, was 12,000 USSR soldiers. It's on record. But the current war in Ukraine has costed Russia around 10,000 soldiers within days. So you can imagine the amount of killing and bloodshed which is going on. Yeah. So, let me interrupt. And indeed, these call them numbers.
helps us in processing the proportion of devastation and the challenge that we as human race have in front of us. But looking at the need to kind of catch up with some other issues also, I would like to see where we fit in terms of how we are impacted directly, indirectly, and what could be our role. But when I say we, I'm not talking about us only as an individual, but as about world body. And so, Hariji, your thoughts on where do you see the end? And I know I'm jumping, and then I'll come back to Dheerajji about the current implications. But do you see any end to this Russia-Ukraine war, which now again, as today we saw Russian missile somewhere attacking near Polish border, resulting into the potential conflict may arise between NATO and USSR. And as some people have been talking, that are we on the threshold of a third world war or so? All of us want peace. There is no movement without peace. So your thoughts, without any data, do you foresee a near end point of this war? नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिगर सुनकर के धीरज जी एक्चुअली किसी का भी दिल कांप जाएगा। युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है, चाहे वो लड़ने वाला हो या जीतने वाला हो या हारने वाला हो। नुकसान हर किसी का है और नुकसान सिर्फ लड़ने और लड़ाने वाले का नहीं है, नुकसान पूरी दुनिया का है, पूरी ह्यूमैनिटी का है, पूरी इंसानियत का है। युद्ध किसी भी चीज का जवाब नहीं है। आज हम देख रहे हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे, स्मॉल किड्स, मदर्स, यंग पीपल, एवरीबॉडी इज जस्ट, यूं समझ लीजिए कि इतने हताश और इतने गर्त में गिरे हुए हैं कि जनरेशन्स लग जाएंगी, सालों साल तक उन लोगों को अपनी जिंदगी को वापस संवारने में टाइम लग जाएगा। युद्ध का अंत होना चाहिए और सुपर पावर का अगर कोई रोल मैं इस समय देखता हूं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे नाटो हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति, हर कंट्री को यही कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध रुकना चाहिए। बातचीत से ही सब चीज का समाधान हो सकता है और आफ्टर ऑल युद्ध के बाद भी बातचीत ही होगी, तो आज क्यों नहीं? Why not today? Yeah. So Hariji, I hear you. And there is very briefly, what Hariji says is the common sense. Anybody would think that बातचीत हो, हेलो वगैरह, पर ऐसा लगता है कि जिस तरह का रोल अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने अपने लिए डिसाइड किया, उसको एनालिस्ट कहते हैं कि उन्होंने दे फ्यूल्ड द वॉर बाय इंक्रीजिंग sort of the kind of expectations which they raise for Ukraine and the self-image which President of Ukraine kind of interpreted for itself with the backing of America and NATO. तो ऐसा माना जा रहा है कि that has also added to escalating the war rather than reducing it. Do you agree with this way of looking at it? If you go in history, definitely after the USSR was broken, there was a treaty according to which NATO was not supposed to move to east, but that treaty was not strictly followed. And Ukraine also has suffered because it gave the largest stockpile of nuclear weapons, around 2000, back to Russia because it was under the safety zone. And today they are repenting. So you are absolutely right. There is, so people do feel there is the other part of the story that Russia was instigating. But I must say that threat that Russia को लगता है कि हमारे बॉर्डर पे न्यूक्लियर मिसाइल लगा देंगे, तो लाटविया, लिथुआ, एस्टोनिया 2004 और 2014 से रशिया के बॉर्डर पे नेटो के मेंबर्स हैं, तो अगर करना होता तो वहां पर भी कर सकते थे। लेकिन डेथ और डेवेस्टेशन जैसे अभी भट्ट जी ने बताया, एब्सोल्युटली, मैं एक फिजिशियन हूं, हम लोग मतलब कितने दिन रात लग के एक जान कोविड में बचाई गई है और अब हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। Ukrainian soldiers 4,000 have died, 639 civilians have died, जिसमें 40 बच्चे हैं, बेकसूर बच्चे हैं, और पूरा घर जब इंसान मूव करता है, who else can understand than people from our own community, Kashmiri Brahmins? We have seen, but at least the Europe is opening up with open hands to them. We had nobody. Absolutely true. And now, as you mentioned about the Kashmiri Brahmins, and
I'm reminded of the film which I saw yesterday in New York, and that film is being talked about in India, everyone for various reasons from various angles. And when we look at the Kashmir file, we become aware that there is a war of narratives, which is a part of this war, which we just talked also. How you portray it is your point of view that you want others to kind of take and look at you or the other party. But especially what happened, and that was the culmination in 1989 90. इंडिया में बैठे बैठे हमको पता भी नहीं था, मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था जब तक कि मैं अमेरिका नहीं आया। मैं मेरे कुछ कश्मीरी मित्रों से यहाँ मैंने उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस फैमिली के नहीं सुना, मुझे मालूम नहीं था। बट ये जो कश्मीर फाइल में जितना कैंडिडली, बोल्डली, ओपनली वो पूरा जो पीड़ा, वेदना, अमानवीय और एकदम ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ में जैसे डिपिक्ट किया है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो इस पिक्चर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। धीरज जी, आपके पास आऊंगा मैं, क्योंकि आप उस स्थान से भी संबंधित रखते हैं, तो आपके लिए उसका पर्सनल मीनिंग भी एडिशनल हो जाता है। बट हरी जी, वॉट एवर यू हैव हर्ड, आई नो यू हैव नॉट सीन द फिल्म, लेकिन इसको लेकर भी कांग्रेस के कैरल किसी ने वो जो ट्वीट किया था, और कई मेन स्ट्रीम इसको पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। तो क्या भारत में हिंदुओं के साथ में कहीं अगर कोई अत्याचार होता है, और ये तो इतनी बड़ी त्रासदी रही कि वो अपने देश में शरणार्थी हो गए, तो हमने कभी खुल के उस पर बात की भी नहीं, अभी भी संकोच कर रहे हैं। ये संकोच क्यों है, आप क्या समझते हैं? इसका कारण ये है कि जो दूसरी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को जीतने के लिए, वोट की राजनीति खेलने के लिए ये सरकारें जो हैं वो इसको मैनिपुलेट करती हैं, उसको अपने हिसाब से उसका हिसाब किताब करती हैं। और इस पिक्चर में जहां तक मैंने जिसके इतने रिव्यू इसके सुने हैं, इसके बारे में जितने इंटरव्यूज सुने हैं, उससे मेरे को लगता है कि एक ऐसी चीज को बाहर लाया गया है जो दुनिया जानना चाहती थी कई सालों से। मैं भी जानता हूं, करीब 25, 30, 35 साल से, 30, 32 साल से इस मुद्दे को दबाया गया। उस मुद्दे को अपने हिसाब से, अपने रंग के, अपने चोले में पहना करके दिखाया गया। ये एक पहली ऐसी पिक्चर बनी है जो एक रियलिटी बता रही है, और हर आदमी को ये चीज जानने का अधिकार है। और हमें ये पॉलिटिशियंस के कलर्स के रंगे हुए कपड़ों से अलग हट करके हमें हकीकत से अपने आप को आगाह करना होगा। और ये एक अच्छी शुरुआत है जो लोगों को ये बताएगी कि पॉलिटिक्स ने किस तरह इस पूरे किस्से को, इस पूरे मुद्दे को दबाया और मैनिपुलेट किया है। ये जनता जानना चाहती है और जनता को जानना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो धीरे धीरे बाहर आएंगे। इतिहास कभी भी इस चीजों को माफ नहीं करेगा। उसका डेफिनेटली असलियत जब लोगों के सामने आएगी तो उनको रियलाइज होगा। ये मेरा जो बिल्कुल सही कहा आपने। और धीरे धीरे अक्सर हम ये सुनते हैं कि जो विजेता होता है वो इतिहास लिखता है, और प्रजातांत्रिक स्वरूप में जब हम रह रहे हैं तो वैसे कोई विजेता नहीं होता है, लेकिन जो संख्या को अपने पक्ष की तरफ करने की ताकत रखता है वो विजेता मान लिया जाता है। इसलिए वो, जैसे हरी जी ने वोट बैंक की बात की थी, तो आपने धीरज, इसके पहले एक शिकारा फिल्म आई थी, विद्यु विनोद चोपड़ा ने बनाई वो, और आपने ये भी देखी। वो बहुत ब्रीफली पहले आप दोनों का कंपैरिजन करें कि अप्रोच क्या है फिल्मों के अंदर, मेन डिफरेंस क्या है? I think Shikara movie was a very very light movie, more towards a romantic movie, जिसने बहुत हल्के से टच किया कश्मीरी को। अगर वो असामी होते, बंगाली होते, हमें कोई, हमारी कॉमेडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम दिखाया। Matter of fact, lot of Kashmiri people were expecting more. Shikara symbolizes soul of Kashmir, just like Pamposh, which is Kamal, symbolizes, just like Sharda, which is Saraswati, just like Shiva, Durga. So we were expecting more, we didn't get it. पर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो ये मूवी है, दिस हैज एक्चुअली टच्ड thousands and hundreds of souls. क्या आप 3 घंटे के अंदर सालों के सफरिंग को दिखा सकते हैं? बहुत मुश्किल टास्क है। मेरे अकॉर्डिंगली इसकी वेब सीरीज अमेज़न और नेटफ्लिक्स पे बननी चाहिए। 1.8448 बिलियन लोगों का देश है। मैंने कल ही इस पे हजारों लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट किया है कि राइट करिए नेटफ्लिक्स को, अमेज़न प्राइम को, बस बिलियंस का बजट है कि वेब सीरीज बनाए और 5 सीजन्स बनाए, ताकि लोगों को समझ आए क्या-क्या थ्रू गुजरे हैं, क्या-क्या जम्मू के अंदर बिच्छू, सांप ने काट लिया। वो सिविल सर्वेंट्स क्या कर रहे थे जिनका काम था उन्हें एक्सेप्ट करना। रिहैबिलिटेशन में इतना दूर, किसी को 200
600 रुपए देके आप उसकी फैमिली को डिग्निटी से कैसे रख सकते हैं? और कश्मीरी हिंदुओं को एक्सोडस कहना बंद कर देना चाहिए। ये जिनोसाइड था, प्लान्ड एथनिक क्लेंजिंग थी, जिसमें स्टेट भी इन्वॉल्व थी। और वो स्टेट के जो आका हैं, वो अभी भी सेंटर में उनकी कुछ पार्टीज बैठी हैं, और मुझे शर्म आती है ये देखते हुए कि जो अपने आप को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी कम्युनिटी के ब्राह्मण बताते हैं, राहुल जी, जो 25% कश्मीरी ब्राह्मण है, इसी वजह से जनेऊ डाल के वोट मांगते हैं। किसी भी पंडित ने आज तक मंदिर में उनसे पूछा नहीं कि आपने मंदिरों को रीएस्टैब्लिश, शिव जो हमारे आराध्य हैं, उनको कितने आपने मंदिर रीएस्टैब्लिश किए कश्मीर में? लेकिन जब वोट मांगते हैं तो जनेऊ लगाते हैं। लेकिन जब कश्मीरियों की बात आती है तो 1 रुपए की उन्होंने हेल्प नहीं की है। आज तक किसी मीडिया के ऊपर वो कभी कैंप्स में नहीं गए, कुछ उन्होंने हमारा दर्द नहीं फील किया। और दिस इज वेरी वेरी सैड। और आई होप पीपल विल स्टार्ट आस्किंग हिम क्वेश्चन, स्टॉप कॉलिंग यू myself as a himself as a Hindu, till you can prove you have done something for people who are suffering. धीरज, आप जो कह रहे हैं वो उनका परिवार भी कश्मीरी पंडित अपने आप को, they are Pauls. हाँ, तो हरी जी, पॉलिटिक्स या संवेदना को साथ लेके चले, ऐसा तो कोई भी लीडर है उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं, पर इस फिल्म के द्वारा ऐसा लगता है कई बार कि और जो कि तथ्यात्मक बातें हैं, जो हत्यारे थे जिन्होंने खुलेआम निर्दोष लोगों का इतने विभत्स और अमानवीय ढंग से कत्ल किया, वो बाद में अपने आप को खून के हाथ धो लेते हैं और अपने को गांधीवादी बताने लग जाते हैं, और उनके संबंध हाई ऑफिसेज में जो कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ भी होते हैं। और इधर ये सारी चीजें रिफ्यूजी कैंप में बैठे हुए कश्मीरी ब्राह्मण देख भी रहे हैं। तो आप मतलब अगर आप कश्मीर से हो या नहीं हो और आप पूरे परिवेश को जानते हो, लेकिन आपकी आंखों में आंसू आए भी ना रहते नहीं इतना। और मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री जैसी, वो बात नहीं है। उन्होंने सिनेमैटिक वैल्यूज को बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करके, इट इज अ वंडरफुल सिनेमा, इट्स अ वर्ल्ड क्लास सिनेमा। जैसे शिंडलर्स लिस्ट की बात आती है जो दूसरे हॉलोकॉस्ट के बारे में, और ये जेनोसाइड था। और मुझे भी पता है धीरज जी कि देयर हैव बीन मैनी स्टोरीज, एंड ऑफ कोर्स ही कैन नॉट ब्रिंग एवरीथिंग इन वन मूवी, पर वो जो पुष्कर नाथ जी के परिवार को केंद्र बना के उन्होंने ये नरेट किया है, ये बहुत ही कमाल का एक उनका क्रिएटिव अचीवमेंट भी मैं कहूंगा, विद करेज एंड बोल्डनेस। हरी जी, इस कश्मीर फाइल्स के बारे में एक बात और करके फिर हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। देयर इज अ सेंस ऑफ अवेकनिंग टाइप कि हम जो जैसा है वैसा देखें, सत्य को देखें और आगे बढ़ें। I think that is the spirit of India right now, as I see in some way. तो आपने भी वो इमेजेस देखी होंगी। एक तो समाचारों में ये था कि जो कपिल शर्मा या अन्य जो मीडिया है, और इस फिल्म का फॉर्मल प्रमोशन नहीं हुआ है, वर्ड टू माउथ, या जो लोग जैसे धीरज अपने दोस्तों को 50 को लेके जाना चाहते हैं, या किसी ने इसके लिए स्क्रीनिंग कराई, दिस हैज बिकम लाइक अ मूवमेंट, एक रिवॉल्यूशन अगर कोई पिक्चर ला सकती है तो मुझे लगता है ये मैंने अपने जीवन में जैसा द कश्मीर फाइल्स के देखा से कभी देखा नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसकी टीम के साथ फोटो खिंचाना और उनकी तारीफ करना इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस दैट गवर्नमेंट इन हाई ऑफिसेस इज कॉग्निजेंट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। और मोदी जी का आपको पास भी पता है, वो भी लाल चौक में झंडा लहराने के लिए गए थे वगैरह। सो आई थिंक इसको आप कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं, वेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट शाइंग अवे कि ये क्या कर दिया है वगैरह, बिकॉज देयर हैव बीन मेनी पीपल हु वेंट टू द कोर्ट कि इस पिक्चर को बैन कर दो। सो हरी जी, योर टेक ऑन मोदी जी's अप्रोच फॉर द फिल्म। नहीं, मोदी जी का इस मामले में तो सर मैं मानता हूं कि जितने भी गुनाह हुए हैं इन पिछले 70 सालों में, डेमोक्रेसी के चोले पहन करके, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपने साथ ले करके, और जिस तरह की बदतमीजियां और जिस तरह की बदमाशियां इस देश के साथ हुई हैं, वो धीरे धीरे करेक्शन के दौर पे आ रही हैं। जो मैं तो ये मानता हूं कि मेरे को ये विश्वास नहीं था कि मैं अपने जीवन में आर्टिकल 370 को हटता हुआ देख पाऊंगा, लेकिन वो भी मैंने देखा।
तो धीरज जी, इस बारे में एक बात और, जो कि फिल्म में बहुत डिटेल में दिखाया गया, जो जेएनयू के पैटर्न पर और उस तरह का एक्सपीरियंस हमें पता है कि विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर दोनों का रहा था। वो फिल्म के बारे में बात करने के लिए जेएनयू में गए थे और किस तरह के उनका विरोध का सामना करना पड़ा था। इसमें जो कैरेक्टर पल्लवी जोशी प्ले करती हैं फिल्म में, जो कि प्रोफेसर है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर रही है यंग माइंड को अगेंस्ट देयर ओन कल्चर वगैरह। ये कभी चेंज होगा क्या? क्योंकि हमारी जो बहुत सारी किताबें हैं वो जिनको पढ़ के लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, वो भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कहीं लिए हुए हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, देखिए मैं 12th में इंडिया में पढ़ा हूँ और मेरा सबसे खराब सब्जेक्ट हिस्ट्री था, लेकिन आज की बात करें तो आई रीड हिस्ट्री फॉर फन। क्योंकि जिस तरीके से वो जिस चश्मे से पढ़ाया गया था, ये आपको गिल्ट फीलिंग देते थे अगर आप हिंदू हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपने तो अत्याचार की लड़ी लगा दी है। ऐसा कुछ भी नहीं था। सिस्टमैटिकली हमारे जो लोगों ने करिकुलम डिजाइन किया, उन्होंने हमारे अंदर ये हीनता की भावना डाली और इंग्लिश सुपीरियरिटी और अपने सनातन धर्म से दूर रखने की जो जो हो सका वो किया। मुगलों को श्रेष्ठ बचाया, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट श्रेष्ठ, लेकिन हमारे अपने अंदर के बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम प्राइड फील कर सकते थे। तो ये जो जेएनयू आप बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है बाय योर टैक्सेस एंड एवरीबडी एल्स टैक्सेस, वो एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प करता है, एंटी हिंदू नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो अब समय आ चुका है कि एक एक डॉलर, एक एक रुपया जो टैक्स पे, और देखिए इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स लगता है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अगर आप चिप्स भी खरीदेंगे तो उसका भी टैक्स लगता है। ये दोनों टैक्सों से पैसा गवर्नमेंट पे जाता है, और वो अगर भारत के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो तो बहुत गलत है। लेकिन मोदी जी एक चमत्कार, मैं तो उनको एक देव पुरुष मानता हूं। उनके आने के बाद इंडिया का ये जो बहुत बड़ा जहाज मूव कर रहा था, उस पर ब्रेक लगनी शुरू हुई है, रिवर्स आने का गियर चालू हो गया है। अब हमें वापस वो रिकवर करनी है जो चीजें हमें गलत पढ़ाई गई। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं हजारों लाखों लोगों से जुड़ा हूं थ्रू सोशल मीडिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आप जान के हैरान होंगे, 15-15 साल के बच्चे इस मूवी को देखने जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीब बच्चों को टिकट्स खरीद के इंडिया में दे रहे हैं अपने गुल्लक तोड़कर। ये एक मूवमेंट है, ये हमारे लिए एक मूवमेंट है। और लोग मुझसे कल मैं थिएटर में था, एक लेडी ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, बोली बेटा मैं 8 साल की थी जब पार्टीशन हुआ और हमारे रिश्तेदार के सर काट दिए ट्रेन के अंदर, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे, जो सत्य है, दिल्ली में पूरी कॉलोनी हमें दी, आरएसएस के लोगों ने इतना हमारा मदद किया। लेकिन मैंने उन आंटी को बोला, आप इमेजिन करिए कि जहां आप पहुंचे वहां पे वही जिन्ना के लोग काम कर रहे हैं एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आपको हार्ड टाइम दे रहे हैं। आप क्या कहती कि बेटा यही तो मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट हमारे देश तो हमारा था, जब हम पहुंचे खुले आम से हमें दिया। लेकिन जम्मू के हिंदुओं ने हेल्प किया, लेकिन उसके अलावा बहुत दरिद्रता से भारत ने दिया। और थैंक्स टू बाला साहब ठाकरे, ये मुझे एक सेकंड लेके बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग स्पॉट्स दी, जिसकी वजह से बहुत आईटी में जा सके। और आरएसएस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो, और जम्मू आरएसएस जो अपने बेस पे थोड़ा कर सकी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने मीडिया का नैरेटिव सेट किया इसको छुपाने के लिए। आई थिंक दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस जिनोसाइड। तो जस्टिस की बात के साथ साथ अपने लिए आवाज उठाना भी महत्वपूर्ण है, और फिर अपनों के लिए आवाज उठाना भी महत्वपूर्ण है। आई थिंक दिस मूवी इंक्रीजेस अवेयरनेस एज वेल एज कमिटमेंट। लोगों को लग रहा है कि ये कुछ ऐसा गलत हुआ है। और अगेन अनदर पोटेंशियल स्कैरी सिनेरियो ये है कि देयर कुड बी मैनी मोर कश्मीर इन इंडिया, जिसकी बात फिल्म में भी आती है कहीं। पर हम थोड़ा सा, बहुत ही कम समय है, लेकिन जो नैरेटिव की बात है वो चुनावों के दौरान बहुत अधिक आ जाती है, और बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग जाता है कि वो सांप्रदायिक है और सिर्फ हिंदूवादी है, और फिर हिंदुत्व इत्यादि भी विषय आ जाते हैं। पर जो हमारे पास सिर्फ 5 ही मिनट है, पर हरी जी पहले आप बताइए, जो रिजल्ट आए यूपी में, आपने ओवरऑल जो एक्सपेक्ट किया था उसी तरह का है? और योगी आदित्यनाथ का जी का फिर से चुना जाने की तरफ पहुंचना, आपका क्या रिस्पॉन्स है उसके लिए? नहीं देखिए साहब, दिस इज अ वंडरफुल इलेक्शन और काफी कुछ संदेश ये इलेक्शन दे रहा है और दे चुका है। सबसे पहली बात यह है कि जो कास्ट एंड क्रीज के हिसाब से जो डिवीजन बनाने की कोशिश की गई, जो नैरेटिव सेट किए गए, जो बातें बताई गई, उससे भी ऊपर वोटर की मैच्योरिटी को मैं सैल्यूट करता हूं।
क्योंकि वोटर्स ने जिस हिसाब से इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन किया है, जो वोटिंग दी है, उसमें उस चीजों का बिल्कुल भी असर नहीं रहा। जात के हिसाब से, जाति पाति के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, हिंदू मुसलमान के हिसाब से जो लोग यूपी में इकट्ठे हुए थे, आप अंदाज लगाइए। ओवैसी ही कंटेस्टेड इलेक्शन फॉर 100 सीट्स, और उसमें से मैं सुनता हूं कि 98 सीटों पे उसकी जमानत चली गई। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आज हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन में हिंदू मुसलमान की जो 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 डिवीजन करने की कोशिश की गई, वो तो इसमें दिखता नहीं है। इसमें तो दिखता नहीं है। आप ये देखिए कि बाकी के मुसलमानों को वोट इकट्ठा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपना जोर लगा दिया, लेकिन वो भी इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज कर नहीं पाए। जातियों के समीकरण बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी 273 सीट, 270 सीट्स के साथ मेजोरिटी यूपी में लेना, ये 55 है ना? 55 है ना धीरज? हाँ 273 है शायद, 255 255, हाँ 255 सीट लेकर के और ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी के आसपास आने के बाद ये तो एक बहुत बड़ी चीज है, हरी जी, जिसमें जी जिसमें जिसमें हमें वास्तव में वोटर्स की मेच्योरिटी को सैल्यूट करना चाहिए कि वोटर्स की उन्होंने इन फालतू बातों को सुना नहीं बहुत धन्यवाद और देश के लिए सुना, प्रकृति के लिए सुना, विकास के लिए बात की हरी जी, और बहुत एंटी धन्यवाद जी। करप्शन के खिलाफ वोट किया, जी, और करप्शन के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के लॉ एंड ऑर्डर को अचीव। हाँ धीरज, इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट फॉर इंडिया अपकमिंग इलेक्शन के अलावा जो एक कंसर्न रहती है कि इंडियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं आप? और स्टेट्स की बात अभी नहीं करते, सिर्फ यूपी के लिए। देखिए 2 पॉइंट मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये फॉलो करता हूँ। वो जमाना जा चुका है जब रोटी कपड़ा मकान, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी यूरोपियन यूनियन उस पर इलेक्शन नहीं जीतता था। फॉर सम रीजन 50 साल तक इंडिया में उसी को चलाया, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए दिमाग चाहिए। लेकिन अगर आपका दिमाग सिर्फ पैसा कमाने में लगता है तो आप कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को नहीं कर सकते। और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर इंडिया का बेसिकली ये सिस्टम कर रखा था। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, नैरेटिव चेंज हो रहा है। लोगों को समझ आ रहा है कि 5,000 रुपए की शराब अगर मैं इससे लेके गलत आदमी को वोट दूंगा, 5 साल के लिए मेरा फ्यूचर गया। तो अब लोग डेवलपमेंट पे वोट दे रहे हैं। और मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। रोटी की, अगर आप रोटी की बात करें, वर्ल्ड की लार्जेस्ट योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, कैश ट्रांसफर दे रही है। अगर आप आवास की बात करें, मकान की बात करें, बात नहीं की उन्होंने। 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेस बाय दिस मंथ 2022 उनकी योजना थी, वो कर दी। अगर आप आयुष्मान भारत की बात करें, जो हेल्थ एक बहुत ही निग्लेक्टेड सेक्टर भारत का था, अभी भी काफी निग्लेक्टेड है। वर्ल्ड की वन ऑफ द लीस्ट स्पेंडिंग कंट्रीज ऑन जीडीपी इंडिया है, लेकिन उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग भी इंडिया ही है आफ्टर मोदी जी केम। उसके अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है। तो आप फोकस देखिए मोदी जी का गरीबी पे है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीबी एक खुद का धर्म है। और डेमोक्रेसी इज फॉर द वीकेस्ट पर्सन, द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द रो। उसको हमें सपोर्ट करना है। और मोदी जी ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं सब पॉलिटिकल पार्टी अपना चश्मा उतारें और देखें कि हम स्टूपिड गाय बकरी नहीं रह गए। हमें मुद्दों पे बात कर, कंपीट करिए मोदी जी से, कंपीट करिए कि हम 4 करोड़ घर देंगे, कंपीट करिए कि हम 20,000 पर मंथ की सैलरी की जगह 80,000 पर मंथ की सैलरी क्रिएट करेंगे इंडिया में। सेमीकंडक्टर्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट पूल इंडिया बनने वाला है, जो वर्ल्ड को लीड करेगा। एस्ट्रो लॉन्चिंग के अंदर इंडिया आ रहा है, एआई के अंदर इंडिया आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग स्टेशंस में इंडिया आ रहा है, सोलर एनर्जी डिपेंडेंस पे इंडिया। धीरज जी, तो बोल सकता हूँ आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू विद अस। और जो आपने बिंदु बताए हैं वो भारत के डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में कुछ इंडिकेशंस हम तक पहुंचाते हैं। ये नया विश्व जो है ये नए तरह की समझ की मांग करता है, और उस तरफ हम इस तरह बातचीत के माध्यम से खुले मन से बढ़े, उस दिशा में डॉक्टर धीरज कौल आपका और हरि भट्ट जी आपने जो आज कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए आप दोनों का आभार है। तो बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक व्यास को अनुमति।